वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खिते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत भी संजीदगी दिखाए। अपनी आइंदा नस्लों को मजीद गुर्बत और जहालत में नहीं धकेल सकते। वो कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में सीका सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। Pakistan desires peaceful relation with all its neighbors, including India. However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of the United Nations, as reflected through the 2 UN resolutions on Kashmir. For 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir by denying them the right of self-determination. Here, Indian democracy is known less for its rights and freedoms and more for its repression and brutality. The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. And yet, Your Excellencies, we are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity, and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. We need to really provide education, health, and medicine and jobs to our children, millions of our children, both sides of the divide. And if we did not act speedily, posterity will not forgive us. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तबाही से निकलने में दहाइयाँ लगेंगी। सैलाब ज़दगान के बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मदद की अपील काबिल सताइश है। आलमी बरादरी पाकिस्तान से ताउन करे। वो कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में सीका सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion, and I have marshaled all the resources at my disposal for rescue, relief, and rehabilitation. But I am grappling with the sinking feeling that we just do not have enough at hand. Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. Mr. Chairman, Pakistan needs immediate help. Our 33 million climate refugees, that is more than the population of many countries. These climate refugees need to be rehabilitated, and today I am personally grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres for having visited Pakistan last month. रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तलबा से खिताब कर रहे हैं। लीडर आजाद होते हैं तो ये सुने जरा, सबसे चीज खौफ इंसान को जमीन पे रखता है। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? हम सबको अल्लाह ने पर दिए। और एरिड यूनिवर्सिटी, आप ये मेरी बात आज याद रखना कि ये अल्लाह ने किसी वजह से पाकिस्तान बनाया था। इसका एक बड़ा अजीम नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या।
मोहम्मद रसूल अल्लाह। हमारा रिश्ता ये था कि बेशक हमारी कोई पश्तो बोले, कोई सिंधी बोले, कोई सराइकी बोले, कोई उर्दू बोले, लेकिन हमारा रिश्ता था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले सब हैं। और उनका रास्ता वो जो इकबाल कहता है शाहीन, इकबाल का शाहीन यानी वो जंजीरें तोड़ के ऊपर परवाज करते हैं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों की जंजीरें तोड़ी तो तारीख बताती है कि चंद सालों के अंदर 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और उन्होंने दुनिया की इमामत की, क्योंकि मेरे नबी ने इंसानों की जंजीरें तोड़ दी। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि हम किसी के सामने नहीं झुकते, जिसमें सिर्फ पत्थरों की मूर्तियां नहीं, ये जो बुत, पैसे का बुत, खौफ का बुत, लालच का बुत, मैं का बुत, जो जहाद अकबर है कि अपने आप को अपनी नफ्स पे काबू पाना, ये सब रास्ते में रुकावटें इंसान की परवाज की। तो एरट यूनिवर्सिटी मैं आज आपके पास क्यों आया हूं? आप सबको तैयार करने के लिए। ये वो वक्त है, एक दफा तहरीक पाकिस्तान, मेरी वालदा जब आप जितनी स्टूडेंट थी, उन सब ने उस तहरीक पाकिस्तान के अंदर जदोजहद की थी मुल्क को आजाद करने के लिए। और अब इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। ये जो अमेरिका की साजिश के जहर, अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर जो चोर मुसल्लत किए, जो 30 साल इस मुल्क को चोर लूट रहे थे, उनको जो मुसल्लत किया गया, अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया। और ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रही है, माइशत तबाह कर दी। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो, नहीं तो मर जाएंगे। शर्म उनको खुद नहीं है, मुल्क को जलील कर रहा है। और फिर कौम को मकरूज करके यहां से पैसा चोरी करके सारे बाहर बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं, मुल्क में आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं और लोगों को समझते हैं कि भेड़ बकरियां हैं। इसलिए मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा और मैं जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपने मेरे मुस्तकबिल के लीडर जो सामने आप खड़े हैं, आपने सबने तैयारी करनी है और ये नहीं समझना कि ये सियासत है, ये जहाद है। वो मुल्क
जिसके ऊपर एक कैबिनेट बैठी हो जो 60% कैबिनेट जमानत पे हो, करप्शन पे हो। अभी कराची के अंदर उन्होंने सिंध का गवर्नर बनाया जो मुजरिम है। आज इस पाकिस्तान में जब तक कोई जुर्म ना किया हो बड़ा ओहदा नहीं मिलता। और इसलिए हम इस कौम ने आप निकलना है। और मैंने आपको सबको कहा, एक ये सुन लें, एक मिनट सुने नौजवानों, ये सुनो। आप याद रखना कि दुनिया में जब दुनिया के अंदर इनकलाब आए हैं, सबसे ज्यादा तालिब इल्म उसमें शिरकत किए हैं। इंडोनेशिया में डिक्टेटर को हटाने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स निकले, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले। अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी, उसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपसेस में नौजवान उस नाइंसाफी के सामने खड़े हुए। वियतनाम वॉर हुई, उसके खिलाफ नौजवान निकले, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स निकले। और इसलिए आज आप सबने तैयारी करनी है मेरे साथ। इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं है, मैं कॉल देने वाला हूं। आपने एरेड यूनिवर्सिटी, हम सब ने ये फैसला किया है, हमने सब ने फैसला किया है कि इस बारी ये कौम खड़ी होगी। ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया है और इनके हैंडलर, इनके सामने सारी इंशाल्लाह कौम खड़ी होगी और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सिका इजलास के मौके पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शुरू। मुलाकात में पाकिस्तान ताजिकिस्तान दो तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू होगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के अराकीन ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और सीका सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सीका इजलास के मौके पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शुरू। इस मुलाकात में पाकिस्तान ताजिकिस्तान दो तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू होगी। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौशहर फिरोज में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सिपह सलार मुतासरीन के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायज़ा भी लेंगे और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फ़ौज पेश है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और सिपह सलार ख़ुद भी इन इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा ले रहे हैं। इजहार यकजहती के लिए आज जाएंगे नौशहर फिरोज़ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौशहर फिरोज़ में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सिपह सलार मुतासरीन के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायज़ा भी लेंगे। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा नौशहर फिरोज़ में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरीन से उनकी जानिब से मुलाकात भी की जाएगी और सिपह सलार मुतासरीन के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। लियारी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, शरफाबाद, गुलिस्तानी जोहर में बिजली बंद। इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया, PECHS सोसाइटी, नाजमाबाद में भी बिजली गायब। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल साइट एरिया में भी बिजली गायब है। गुलशन ममार, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी बिजली बंद है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। कराची इस वक्त बड़े बिजली ब्रेकडाउन का शिकार नज़र आ रहा है और इब्तदाई तौर पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए के इलेक्ट्रिक को सिर्फ ये बताने में हतमी तौर पे कि ये क्या मामला है और कितनी देर में हल किया जा सकेगा।
ताहम अब के इलेक्ट्रिक का वाज़े तौर पर मौक़िफ़ सामने आ गया है और यही बताया जा रहा है कि वज़ारत तवानाई की जानिब से ये बताया गया है कि उनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें कुछ टेक्निकल ख़राबी हुई है, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मुतासर हुए हैं। और सिंध का बड़ा हिस्सा है जहाँ पे लाइट नहीं है, कराची में भी क्योंकि सिंध का हिस्सा है तो कराची भी 90% इस वक्त बिजली से महरूम नज़र आता है। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 5 घंटे लग सकते हैं इस अमल को कि मुकम्मल तौर पर बिजली इस शहर में बहाल की जा सके। सातों अजला इस वक्त जो हैं वो बिजली से महरूम नज़र आ रहे हैं, चाहे रिहायशी इलाके हों, सनती इलाके हों या फिर तजारती इलाके। और ख़ास तौर पे शहर में बहुत सारी जो तनसीबात हैं, जो इलाके हैं, जो अहम इमारतें हैं, ख़ास तौर पे अस्पताल हैं, वहाँ पे भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी, जिसकी वजह से खासा जो है लोगों को बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। मुनिस, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मुल्क में ज़िमनी इंतखाब का मैदान इतवार को सजेगा, इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। रुख करेंगे मुल्तान का, उसके बाद कराची के 2 हलकों की सूरत हाल भी जानेंगे। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है जानशेर खान ने, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे फैसल खान। जानशेर खान, बताइए मुल्तान का जो हलका है 157, कैसी गहमा गहमी है वहाँ पर? अगर बात की जाए तो इस वक्त अरूज पर है गहमा गहमी, क्योंकि 16 अक्टूबर को पोलिंग होने जा रही है इस हल्के पर। मैं इस वक्त कायापुर चौक पर मौजूद हूँ। इस हल्के के ये बॉर्डर है, क्योंकि इसका आधा इलाका शहरी है और आधा दही इलाका है। ये इलाका जो है दही और शहरी इलाकों का मिक्स बना हुआ है। तो मैं इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हूँ। दोनों उम्मीदवारान जो हैं, जो मेहरबानो कुरैशी हैं पीटीआई की उम्मीदवार और जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अली मूसा गिलानी, वो सरतोड़ जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवार 2018 में इस हलके से पीटीआई के उम्मीदवार जैन कुरैशी कामयाब हो चुके हैं और 10,000 वोटों की लीड से उन्होंने अली मूसा गिलानी को हराया था। लेकिन तब थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ थी, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार भी मैदान में थे और उन्होंने भी 65,000 के करीब वोट लिए थे। अब जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, ये एक मुतफिका उम्मीदवार हैं तमाम जमातों के, नून लीग के तो पीडीएम के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला है। इसके साथ साथ पीटीआई को एक थोड़ी सी बर्तरी ये है कि 2017 में पीपी 217 में इसमें हल्के में पोलिंग हो चुकी है, जिसमें जैन कुरैशी पीटीआई के वो जीत चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें नून लीग की इस वक्त सपोर्ट हासिल है। तो शहरी और दही इलाकों का क्योंकि मिक्सचर है, शहरी इलाकों के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, थोड़ा सा वो वोटर्स को परेशान कर रही हैं, वो एक प्रोविंशियल मैटर है। लेकिन इसके साथ साथ जो दही इलाका है, वहाँ पर जो लोड शेडिंग है, जो एक फेडरल इशू हो जाता है, उसने भी वोटर्स को खासा गुस्से में किया हुआ है। इसके साथ साथ जो डीजल हैं, उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि काश्तकार हैं, खेती बाड़ी है, खाद महंगी है। तो सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। जानशेर खान साथ ही मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे कराची का। कराची के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और फैसल खान से तफसीलात जानेंगे। फैसल, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है और ये भी बताइएगा कि उम्मीदवारों की जानिब से कैसी कैंपेन की जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में जो गहमा गहमी की बात है, कराची में इस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आती। कल भी हमने 239 NA 239 हो चाहे NA 230 हो, जहाँ पर दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इस तरह की गहमा गहमी या सियासी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आती किसी भी सियासी जमात की जानिब से। छोटी छोटी मीटिंग्स तो नज़र आती हैं, लेकिन बड़ी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 239 के में शाह फैसल कॉलोनी, जो इस हलके का ही एक इलाका है, वहाँ पर पंजाब ग्राउंड में एक जलसे का ऐलान किया है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल जो है इस जलसे में खिताब करेंगे। इस हवाले से जो इस पंजाब ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कंटेनर यहां पर लाए गए हैं, चारों तरफ से इस जो है जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, स्टेज बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहला सियासी जलसा कहा जाए वे ज़िमनी इंतखाबात के तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही जलसा किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं, MQM है, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है या तहरीक लब्बैक है, इनकी जानिब से कोई इस तरह के बड़े सियासी जलसे नहीं किए गए। हाँ, कल हमारी जो MQM के और PSP के जो उम्मीदवार थे उनसे मुलाकात हुई। उनसे जब इस तरह का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम डोर टू डोर जो है अपनी कैंपेन कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग, लेकिन बड़ा जलसा इस वक्त तक कोई नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पहला बड़ा जलसा है जो इन ज़िमनी इंतखाबात में कराची में NA
239 में किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल खिताब करेंगे, जिसकी तैयारियां इस वक्त पंजाब ग्राउंड में जारी हैं। जी 16 अक्टूबर को इंतखाब होने जा रहा है और सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। कराची से फैसल खान जबकि मुल्तान से जानशेर खान हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद सेशन अदालत खातून जज को धमकी देने का केस। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के जमानती मचलके जमा। इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपये के नकद जमानती मचलके अदालत में जमा करवा दिए। इमरान खान भी अदालत में पहुंच चुके हैं। ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं कि इमरान खान इस्लामाबाद के सेशन अदालत पहुंचे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी आमिर। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सेशन कोर्ट में पहुंच चुके हैं और इस वक्त सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में मौजूद हैं। उनके वकला की तरफ से अदालती अहकामात की रोशनी में जो 50,000 रुपये के ज़मानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया था, वो 50,000 रुपये के ज़मानती मचलके इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं और आज फैसला होगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला करना है कि इमरान खान को इस मुकदमे में, जिस मुकदमे में खातून जज को धमकियाँ देने का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके अलावा थाना कोहसार में जो मुख्तलिफ नफरत अंगेज तकरीर से मुतल्लिक केस था, उसमें भी जमानत मुस्तकिल बुनियादों पर मिलनी है या नहीं मिलनी, इस बात का फैसला सेशन कोर्ट ने करना है। इस वक्त जो पुलिस है और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है, दोनों फरीकैन अदालत में मौजूद हैं। पुलिस प्रोसिक्यूटर भी आ चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद ही बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी और सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती फैसला करेंगे कि इमरान खान को इन दोनों मुकदमात में मुस्तकिल जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी। ठीक है, आमिर सईद अब्बासी आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।